It is a story of 11 years old child named Peter. The chapter begins that he's alone with his grandfather and he's extremely sad. पीटर के ग्रैंडफादर को भेजा जा रहा है ओल्ड एज हाउस, इसलिए कि पीटर की मदर नहीं है और पीटर के फादर किसी और लड़की से शादी करना चाह रहे हैं। अब वो लड़की जिससे उसके फादर शादी कर रहे हैं वो उसके ग्रैंडफादर या उसके दादा को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसके घर में। इसी वजह से उसके फादर ये डिसीजन लेते हैं कि उसको ओल्ड हाउस में भेजा जाए। जाने से पहले वो उसके लिए कंबल खरीदते हैं जो कि बहुत मोटा होता है और बहुत कॉस्टली है, जिस पर वो लड़की एतराज़ करती है और उस पीटर के फादर को बताती है कि आपने ऐसे ही एक्स्ट्रा पैसे इस पे खर्च किए, आपको चाहिए था कि एक छोटा सा ब्लैंकेट ले लेते। फॉर ओल्ड मैन इट्स अ वेरी बिग एंड वेरी थिक ब्लैंकेट। पीटर इस बात से और भी दुखी हो जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि शी इज़ राइट, जो ये लेडी कह रही हैं, आपको चाहिए कि इस ब्लैंकेट को आप काट लें और 2 हिस्सों में तकसीम करें। उसके फादर बहुत हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहा है पीटर। तो पीटर सजेस्ट करता है कि मैं आधा हिस्सा जो है वो आपको दूंगा जब आपको भी मैं ओल्ड हाउस भेजूंगा। अपने वालिद को वो रियलाइज़ करवाना चाहता है कि अब मेरे दादा को आप ओल्ड हाउस अगर भेज रहे हैं, सो दिस इज़ अ रॉन्ग डिसीजन। सो इट्स अ वेरी गुड स्टोरी विद अ गुड मॉरल और अपने फादर के ज़मीर को बहुत सक्सेसफुली और बहुत तरीके से जगाता है। द ब्लैंकेट रिटन बाय फ्लॉयड डेल। इट वॉज अ फाइन सितंबर नाइट। ये सितंबर की एक सुहानी रात थी। Fine here means with the pleasant weather. A thin white moon rose over the valley. Also important from translation point of view. वादी पर बारीक सफ़ेद चांद निकल आया था। Peter, 11 years old, didn't see the moon. He didn't feel cool September breeze. Breeze mean cool and light wind. हल्की हवा जो होती है blow into the kitchen, for his thoughts were fixed on a red and black blanket on the kitchen table. So his mind was obsessed with the thoughts of blanket which was lying on the kitchen table and he couldn't feel the pleasant weather. Peter मुसलसल उस ब्लैंकेट के बारे में सोच रहा था और जो चांद था और खूबसूरत मौसम था उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा था। So this was September night. MCQs के लिए इसको अंडरलाइन करें। Thin moon white था उसका कलर और कंबल जो था वो किचन टेबल के ऊपर पड़ा था। The blanket was a gift from his dad to his granddad's going away gift. Going away gift means someone is shifting and this gift will go with that person. That is why it was going away gift. They said that granddad was going away. That's why they called it going away. क्योंकि उनके दादा उस घर से जा रहे थे और उनके लिए वो गिफ्ट था, तो इसलिए वो गिफ्ट भी going away गिफ्ट हो गया। Peter had not really believed his dad would send granddad away. Peter couldn't believe that his father will do this act कि वो अब उसके दादा को घर से दूर भेज देंगे। But now there it was. But now because that blanket was there, it was for sure that he was going away. Dad had brought it that very morning. उसी दिन सुबह जो है उसके फालिद ने इसको ख़रीदा and this was the last evening he and his granddad would have with each other. So this was the last evening they were spending together. Together the old man and the young boy washed the supper dishes. Supper is a meal between lunch and dinner. तो शाम का खाना आप इसको कह सकते हैं। Dad had gone out with the women he was to marry. So Peter's dad was actually out with that girl to whom he is going to marry. He would not be back for some time. When the dishes were finished, the old man and the boy went outside and sat under the moon. I will get my harmonica and play for you. Harmonica is a musical instrument, mouth organ इसको बोला जाता है। It is having holes. When someone blows into this musical instrument, it produces some musical tones. तो उसके दादा कहते हैं I'll get my harmonica and play for you. The old man said I will play some of the old tunes. I will play some of the old tunes. Important, इसकी ट्रांसलेशन नोट करें। मैं कुछ पुरानी धुनें बजाऊंगा। But instead of harmonica, he brought out the blanket. It was a big double blanket. Now, isn't that a fine blanket? उस कंबल की तरफ इशारा करते हुए कि ये कितना खूबसूरत है, said the old man, smoothing it over his knees. अपने घुटनों पे उसने डाला और उसके ऊपर हाथ फेर के कहा, and isn't your father a kind man to be given the old man a blanket like this to go away with? It caused something. It did look at the wool in it, and warm it will be these cold winter nights to come. तो सर्दी में ये बहुत अच्छा कंबल होगा, बहुत गर्म होगा। There will be no other blanket like it up there. अभी तक
ऐसा कंबल किसी के पास वहाँ नहीं होगा. It was like granddad to be saying that. ये दादा जैसे शख्स ही थे जो ऐसा कह रहे थे. Translation: He was trying to make it easier. So he was trying to make easy the situation, to make it acceptable. Ever since they had talked about going away, granddad had said it was his idea. उसके दादा खुद पे ही वो लेते कि ये मेरा ही आइडिया है, मैं खुद जा रहा हूँ अपनी मर्जी से. Imagine leaving a warm house and friends to go to that building, that government building, where he would be with so many other old fellows having the best of everything. But Peter had not really believed Dad would do it until this night when he brought home the blanket. अभी तक पीटर को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके वालिद ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि ये कंबल आ गया था तो अब वो रियली उसको लगा कि उसके फादर उसके दादा को भेज रहे हैं. Oh yes, it's a fine blanket, Peter said and got up and went into the house. He wasn't the kind to cry, and besides he was too old for that. He had just gone in to get granddad's harmonica. अब वो माउथ ऑर्गन लेने गया. The blanket dropped to the floor as the old man took the harmonica. It was the last night they would have together. Neither the old man nor the young boy had to say a word. Granddad played a few notes and then said, "You will remember this one. तुम इसे याद रखोगे." The thin moon was high overhead and the gentle breeze blew down the valley. वादी में जो है ठंडी हवा चल रही थी. The last time Peter thought he would never hear Granddad play again. It was well that Dad was moving to a new house. उसके वालिद जो है एक न्यू हाउस की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, away from here, जो यहाँ से दूर था. He didn't want to sit here outside on fine evening under a white moon with Granddad gone. The music ended and the two sat for a few minutes in silence. Now both were in deep sad mood. तो दोनों दादा और पोता जो है वो कुछ देर के लिए खामोश बैठ गए. Then Granddad spoke. Here is something happier. अब मैं आपको कोई खुशी वाली धुनें सुनाता हूँ. Peter said and looked out over the valley. Dad would marry the girl. Yes, that girl who had kissed him and who had said she would try to be a good mother to him and all that. अब पीटर को उस लड़की का ख्याल आता है जिससे उसके डैड शादी कर रहे हैं. The tune stopped suddenly and Granddad said, "It's a poor tune except to be dancing too. And then it's a fine girl your father is going to marry. He will feel young again with a pretty wife like that. And what would an old fellow like me do around the house? Getting in the way, an old fool with all the talks about backaches and pains." अब यहाँ पे वो पीटर को बता रहे हैं कि आपके जो फादर हैं वो शादी कर लेंगे, यानी अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं, और फिर मैं एक बूढ़ा आदमी हूँगा, यहाँ पे सिर्फ अपने कमर दर्द के बारे में या और दर्दों के बारे में बात करूँगा, तो मैं एक बोझ बन जाऊँगा यहाँ पे, या अच्छा फील खुद भी नहीं करूँगा, तो इससे अच्छा है मैं ओल्ड हाउस चला जाऊँ. एक्चुअली ही वांटेड टू कंसोल पीटर, और पीटर को ये तसल्ली दे रहा है कि मैं खुद ही ये डिसीजन लेके ओल्ड हाउस जा रहा हूँ. एंड देन देयर विल बी babies coming and I don't want to be around listening to them cry all hours of the night. No, it's best that I leave. Well, one more tune or two and then we will get to bed. Get some sleep. In the morning I will get my new blanket and take my leave. Listen to this. It's a bit of a sad tune but nice one for a night like this. अब उसके दादा ये भी उसको बता रहे हैं कि फिर जाहिर है बच्चे आएंगे इस घर में और वो रोएंगे तो मैं शायद बर्दाश्त ना कर पाऊँ क्योंकि मैं खुद बूढ़ा हूँ. So that is why I decided to leave for an old house. They didn't hear the two people coming down the road, Dad and the pretty girl with a hard, bright face like a doll. So his dad and that girl to whom he was going to marry came inside, but they heard her laugh and the tune stopped. उसके दादा ने जो माउथ ऑर्गन बजा रहे थे वो बजाना बंद कर दिया. Dad didn't say a word, but the girl walked up to Granddad and said prettily. Prettily means in a very light manner, जैसे कुछ ना हो रहा हो. I will not be seeing you in the morning, so I came over to say goodbye. चूँकि मैं सुबह में नहीं आ सकती थी तो इसलिए मैं आपको खुदा हाफिज कहने आई हूँ. It's kind of you, said Granddad, looking down at the floor and then seeing the blanket at his feet. He bent down to pick it up and, "Will you look at this?" he said, sounding himself like a little boy. Now he's pretending that he's quite happy for that blanket and he's happy going to old house. तभी वो ऐसा
एक्ट कर रहा है कि वो बहुत खुश है और वो उस लड़की को अपना ब्लैंकेट दिखाता है कि ये कितना खूबसूरत है. Yes, she said, it's a fine blanket. She felt the wool again and said, a fine blanket indeed. She turned to Dad and said to him coldly, must have cost, pretty penny. Mean it must be costly. ये ज़रूर बहुत महंगा होगा. Translation of this line. Dad cleared his throat. I wanted him to have the best. Peter's dad was a bit hesitant while explaining this to the lady. The girl stood there, still looking at the blanket. It's a double one too. अब वो लड़की मुसलसल उस ब्लैंकेट के बारे में कमेंट कर रही है कि ये डबल भी है और शायद बहुत कीमती भी है. Yes, the old man said, it's a double one, a fine blanket for an old fellow to be going away with. The boy suddenly walked into the house. यहाँ पे पीटर का जिक्र हो रहा है कि वो अंदर जाता है. He could hear the girl still talking about the expensive blanket. He heard his dad get angry in his slow way. And now she was leaving. As Peter came out, the girl turned and called back, no matter what you say, he doesn't need a double blanket. Dad looked at her with a funny look in his eyes. She is right, Dad, the boy said. अब पीटर उसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है. Granddad doesn't need a double blanket. Here, Dad. And he held out a pair of scissors. Cut it, Dad. Cut the blanket in two. अब पीटर अपने फादर से कहता है कि ये जो ब्लैंकेट आप मेरे दादा को दे रहे हैं ये बहुत बड़ा है और बिग भी है, काफ़ी मोटा भी है, तो इसको ऐसा करें कि इसको आधा बीच में से काट लें. बोथ ऑफ देम लुक्ड एट द बॉयज सरप्राइज्ड. कट इट इनटू टू, आई टेल यू डैड, एंड कीप द अदर हाफ. दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, सेड ग्रैंडडैड जेंटली. आई डोंट नीड सच अ बिग ब्लैंकेट. यस, द बॉय सेड. A single blanket is enough for an old man when he is sent away. We will save the other half, Dad. It will come in useful later. Now what do you mean by that? Asked Dad. I mean, said the boy slowly, that I will give it to you, Dad, when you are old and I am sending you away. अब वो अपने फादर से कह रहा है कि इसको बीच में से काट लें क्योंकि आधा हिस्सा मैं रख लूँगा और जब आप बूढ़े हो जाएंगे और मैं आपको ओल्ड हाउस भेजूँगा तब ये आधा हिस्सा काम में आएगा और मैं वो आपको दे दूँगा. There was a big silence. एक तवील खामोशी छा गई. A translation. And then Dad went over to Granddad and stood before him, not saying a word. अब उसको शर्मिंदगी फील हुई पीटर के फादर को और वो अपने फादर के सामने खड़ा हो गया. But Granddad understood, for he put out his hand. Dad went over to Granddad and stood before him, but Granddad understood, for he put out his hand and laid it on Dad's shoulder. Peter was watching them, and he heard Granddad whisper softly, "It's all right. It's all right, son. I knew you didn't mean it." And then Peter cried, but it didn't matter because all the three were crying together. So there was not that much difficult vocabulary in this chapter, and hope you mark the important sentences from translation point of view, also the vocabulary. Okay students, after the chapter let's have a look on the exercise. First of all we will solve the exercise and then we will go towards summary and question answer. पेज नंबर 117 पे आपके पास है vocabulary. Find the meaning of past and past in the dictionary. Identify their parts of speech and then use them correctly to fill in the blanks. यहाँ पे past और past आपने fill up करना है. past और past में थोड़ा सा फर्क जान लीजिए. past हमेशा as a verb use होता है, जबकि past जो है ये noun के तौर पे भी use हो सकता है, adjective भी, preposition भी और adverb, मगर never ever it is used as a verb. तो देखें, the museum is on the right just past the church. यहाँ पे proposition के meaning दे रहा है past the church. My brother passed his exam. pass का मतलब pass होना और इसकी जो past form है ed के साथ, so just passed his exam with great result. और चूंकि past को आप as a verb use नहीं कर सकते, so you will use verb past.
नाउ सेंटेंस नंबर 3 इज वी हैव जस्ट डैश द एग्जिट ऑफ लीड्स। अब यहाँ पे देखें कोई मोशन वाला वर्ब आपको जरूरत है यहाँ पे, सो यू विल यूज पास्ट। वी हैव जस्ट पास्ट द एग्जिट फॉर लीड्स, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पास्ट जो है एज अ वर्ब यूज नहीं हो सकता, तो हम पास्ट ही लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर 4 सेंटेंस इज गो पास्ट द पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे देखिए प्रपोजिशन का काम कर रहा है, गो पास्ट द पोस्ट ऑफिस, पास्ट लगेगा और एडवर्ब का काम देगा गो के साथ। नंबर 5 इज he thinks he was a fool in his past life. So past here is working as an adjective, life noun है और past उसके लिए adjective का काम कर रहा है। और हमने कहा कि past जो है वो different functions अदा करता है, past जो है वो सिर्फ verb का काम देता है। So number A is complete the sentence with the gerunds for the verb in parenthesis। तो parenthesis जो bracket है, जैसे paint है, play है, ये वाले जो है आपने as a gerund यूज करने हैं। gerund होते क्या है? present participle, यानी verb की first form जो होती है, जैसे सिंग, और उसके साथ आप ing एड करते हैं, फिर इस फॉर्म को आप एज अ नाउन यूज करते हैं। These are called gerunds। अब एज अ नाउन कैसे? जैसे देखें आप कहते हैं सिंगिंग इज हर हॉबी, अब सिंगिंग जो है एज अ नाउन यूज हुआ है। स्मोकिंग इज बैड हैबिट, स्मोकिंग यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है। और अगर मैं कहूँ ही इज स्मोकिंग, तो यहाँ पे स्मोकिंग एज अ gerund यूज नहीं हुआ, एज अ नाउन यूज नहीं हुआ, बल्कि एज अ वर्ब यूज हुआ है। कंटिन्यूस एक काम है वो शो हुआ है, ठीक है। अब इसी के मुताबिक जो आपके पास पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में जितने भी वर्ब हैं, आपने या तो gerund जहाँ पे ज़रूरी समझते हैं कि gerund के तौर पे यूज़ करना है, gerund के तौर पे यूज़ करना है। अगर जहाँ पे आप समझते हैं कि verb के तौर पे, तो verb के तौर पे यूज़ करना है। She is good at painting. He is crazy about playing. I don't like playing cards. So number 3 is I don't like playing cards. इन तमाम सेंटेंसेस में आपके पास मेजर वर्ब जो है मौजूद है, ठीक है। लाइक दूसरा जो आप वर्ब यूज कर रहे हैं जो कि आपको वर्ब लग रहा है, जैसे प्लेइंग, तो दिस इज नॉट वर्ब। देखें आपके पास अपना वर्ब है, डोंट लाइक, लाइक आपके पास वर्ब है, प्लेइंग इज ओनली यू आर यूजिंग इट एज अ नाउन, सो दीज आर कॉल्ड gerunds। नंबर 4 इज दे आर अफ्रेड ऑफ स्विमिंग इन द सी। अफ्रेड आपका मेन वर्ब है, स्विमिंग एज अ नाउन यूज हुआ है। यू शुड गिव अप स्मोकिंग। नंबर 6 इज समी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, he is interested in making friends. My uncle is afraid of going by plane. We insist on cooking the dinner ourselves. Number B exercise on page number 118 is use the verb in parenthesis either as a gerund or the infinitive. Infinitives ये भी verbals की एक फॉर्म है। verbals means जो नेम है, दिखते वो verb की तरह हैं, लेकिन फंक्शन उनका जो है वो नाउन की तरह होता है। जैसे आपने पीछे gerunds को देखा, वो होते बिल्कुल दिखते वर्ब ही हैं, लेकिन उनका काम जो है एज अ नाउन होता है। इसी तरह इन्फिनेटिव्स जो हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप टू लगाते हैं, और ये जो है एज अ नाउन भी फंक्शन करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट भी फंक्शन करते हैं। हालांकि बनते वर्ब से हैं, लेकिन वो एज अ वर्ब यूज नहीं होते, ठीक है। तो या तो इन्फिनेटिव या gerunds आपको नीचे जितने भी दिए गए सेंटेंसेस है उसमें यूज करना है। जहाँ पे इन्फिनेटिव आपके ख्याल में लगाना है इन्फिनेटिव लगाएं, जहाँ पे gerunds तो वहाँ पे gerunds। सेंटेंस नंबर 1 इज आई कुडंट स्लीप सो आई ट्राइड to drink hot milk. Now to drink is infinitive। आपका देखिए मेजर वर्ब कौन सा है, यहाँ पे आपका मेजर वर्ब जो है I tried, ठीक है, मैंने ट्राई किया। टू ड्रिंक, ड्रिंक जो है वो वर्ब है, लेकिन टू लगाने से इन्फिनेटिव बन जाने के बाद ये एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा, बल्कि इन्फिनेटिव बन गया है। आई ट्राइड टू, तो ट्राइड को डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब है एडवर्ब का काम दे रहा है। आई ट्राइड टू ड्रिंक हॉट मिल्क। नंबर 2 इज शी ट्राइड टू रीच द बुक ऑन द हाई शेल्फ बट शी वाज टू स्मॉल। Number 3 is we tried to get the party on time, but he was delayed. Number 4, we tried to open the window, but it was so hot outside it didn't help. Number 5 is he tried to get a job in a newspaper firm, but they wouldn't hire him. Number 6 is he tried getting a job in a newspaper firm, but he still wasn't satisfied. तो देखिए दूसरे में आपने getting a job gerund use किया। Number 7, you should stop smoking. Stop is your major verb and smoking is gerund. It's not good for your health. Number 8 is we stopped studying because we were tired. Number 9, they will stop having lunch at 12. Number 10, we stopped to have rest. We were really sleepy. Oh no, I forgot to buy milk. Please don't forget to pick up some juice on your way home. Number 13, I forgot locking the door, but I am sure I must have locked it. Number 14, have you studied this before? I have forgotten learning it. Please remember to bring your homework. I remember going to the beach as a child,
Finally, I remembered to bring your book. Here it is. Do you remember eating steak in that little restaurant in Lahore? I regret to tell you the train has been delayed. I regret telling my secret. Now she has told everyone. Number C है आपके पास replace the gerunds by an infinitive by a gerund in the following sentences. Gerunds को infinitive को gerunds के साथ replace करना है. To laugh is better than to frown. ठीक है, सो गुस्सा दिखाने से बेहतर है कि हंसा जाए. सो लाफिंग इज बेटर देन फ्रॉनिंग. राइटिंग स्टोरी इज नॉट ईजी. सो टू राइट अ स्टोरी इज नॉट ईजी. ही लाइक्स टू कलेक्ट बुक्स एंड डजंट लाइक गिविंग them away. To fly kites is a good sports, but betting is bad. He likes reading and writing. Number 6, she likes cooking and painting. So she likes to cook and to paint. Number 7, seeing is believing. To see is to believe. Number 8, she loves making dolls. She loves to make dolls. Number 9, waiting for people who were late made him angry. Number 10, selling insurance is a pretty boring job. नंबर डी की तरफ आते हैं जिसमें है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन अ जेरेंस और अ प्रोग्रेसिव. अच्छा, प्रोग्रेसिव क्या होता है? कंटिन्यूस टेंस को हम बोलते हैं जिसमें वो एक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा होता है प्रेजेंट टाइम में ही. फॉर एग्जांपल शी इज स्विमिंग, शी इज ड्रिंकिंग एटसेट्रा. अब प्रोग्रेसिव और जेरेंट के दरमियान आप फर्क कैसे करेंगे? जिस भी कंटिन्यूस वर्ब से पहले, जैसे स्विमिंग से पहले इज आया, शी इज, तो वो कंसिडर होगा प्रोग्रेसिव. शी इज स्विमिंग, शी इज ईटिंग. लेकिन अगर उससे पहले कोई टू बी वर्ब या मेजर वर्ब वो आपका नहीं है, इसका मतलब है कि वो जेरेंट होगा. सेंटेंस नंबर 1 में देखिए ही लाइक्स हमारे पास मेजर वर्ब है. रीडिंग जो है ये एज अ जेरेंट यूज हुआ है, एज अ नाउन यूज हुआ है. ही लाइक्स रीडिंग बुक्स. नंबर 2 में देखें ही इज. अब देखें टू बी वर्ब इज जो है वो रीडिंग से पहले आया. इसका मतलब है यहाँ पे रीडिंग एज अ नाउन यूज नहीं हुआ, एज अ वर्ब यूज हुआ है, तो ये हमारे पास हो गया प्रोग्रेसिव. ही इज रीडिंग बुक्स. नंबर 3 इज रीडिंग बुक्स कैन बी ग्रेट फन. तो यहाँ पे देखिए रीडिंग जो है एज अ नाउन शुरू में ही यूज हुआ, और जब भी आईएनजी वर्ब जो है एज यानी जेरेंट जब एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तो हमेशा वो नाउन की जगह पे यूज होता है. तो इसीलिए रीडिंग शुरू में आया, डेफिनेटली इट इज जेरेंट. ही इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स. यहाँ पे रीडिंग अगेन एज अ जेरेंट यूज हुआ. अब देखिए ही वॉज रीडिंग बुक्स. वॉज टू बी वर्ब का पास्ट फॉर्म, तो इसका पास्ट फॉर्म वॉज अगेन इज टू बी वर्ब एंड दिस इज प्रोग्रेसिव. रीडिंग से पहले आया. ही हैज बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 hours. दिस इज ऑल्सो प्रोग्रेसिव. हैज बीन आया रीडिंग से पहले. इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स हेनरी वेंट टू बेड. यहाँ पे वेंट हमारे पास मेजर वर्ब है, दैट इज वाई रीडिंग बुक्स जो है यहाँ पे रीडिंग बुक्स जो है रीडिंग एज अ नाउन यूज हुआ है, अगेन इट्स जेरेंट. नंबर 8, डू यू लाइक रीडिंग बुक. अगेन जेरेंट. ही हैड बीन रीडिंग बुक्स. अब यहाँ पे हैड बीन आया रीडिंग से पहले, तो ये प्रोग्रेसिव है, जेरेंट नहीं है. सो नंबर 10 इज अ बिट ट्रिकी. His hobby is. दो यहाँ पे is जो है वो पहले रीडिंग से पहले यूज हुआ है, तो लेकिन रीडिंग जो है यहाँ पे हमारा वर्ब नहीं है. यहाँ पे रीडिंग एज अ नाउन यूज हुआ है, लेकिन काम ये एडजेक्टिव का दे रहा है, रीडिंग बुक्स. तो अगेन वी विल से दैट दिस इज अ जेरेंट, नॉट प्रोग्रेसिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टुवर्ड्स द समरी ऑफ द चैप्टर एंड देन वी विल लुक एट क्वेश्चन आंसर्स. After the exercise, we come towards summary. This short story, The Blanket, written by Floyd Dell, is about family bond and relationships. The main theme of the story is that old parents should not be ignored and disrespected. Peter, 11 years old, is strongly attached with his grandfather, who is soon to be sent to an old age home by his son. Peter's father is going to marry a girl who doesn't want her old father-in-law to stay with. जिस लड़की से पीटर्स के फादर शादी करना चाहते हैं वो नहीं चाहते कि उनके जो बूढ़े ससुर हैं वो उनके साथ रहें. पीटर्स फादर दो रिलक्टेंट टू सेंड हिज फादर टू एन ओल्ड एज हाउस. दो पीटर के फादर नहीं चाहते कि वो अपने फादर को इस तरह से ओल्ड एज हाउस भेजें. फाइनली मेक्स हिज माइंड. लेकिन आखिरकार जो लड़की है वो इतना इंसिस्ट करती है, इतने पुरजोर तरीके से ऑब्जेक्शन करती है कि पीटर के फादर को आखिरकार अपने फादर को भेजना पड़ता है. मेक्स हिज माइंड टू सेंड हिज फादर ऑन गर्ल्स इंसिस्टेंस means उसकी जिद पे. He however buys a fine blanket as a gift for his father in order to compensate or pay for his guilt. Guilt means shame. कोई भी दूसरा वर्ड जो अल्टरनेटिव में है दिया गया है वो लिख सकते हैं. तो बहरहाल वो एक कंबल खरीदते हैं ताकि वो अपने अंदर के एहसास जुर्म को मिटा सकें. Meanwhile the girl visits to say goodbye to her old father-in-law. The old man shows his blanket to the girl. She repeatedly opposes, complaining the idea of such a big and expensive blanket
फॉर एन ओल्ड मैन। जब पीटर्स के ग्रैंडफादर उसको अपना ब्लैंकेट दिखाते हैं, ये लड़की मुसलसल उस पर कंप्लेन करती है, उस पर ऑब्जेक्शन करती है कि इतने बड़े ब्लैंकेट और इतने एक्सपेंसिव ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं थी। द आइडिया स्ट्राइक्स पीटर माइंड एंड ही ब्रिंग्स अ पेयर ऑफ सिजर। यही चीज़ पीटर के दिमाग में एक आइडिया लाती है और अंदर से कैंची लेकर आता है। ही टेल्स हिज फादर टू कट द ब्लैंकेट इनटू टू बिकॉज ही विल यूज़ इट व्हाइल ही विल बी सेंडिंग हिज फादर टू एन ओल्ड एज हाउस। पीटर अपने वालिद को बताता है कि हाँ, इसे ये कंबल जो है 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना चाहिए ताकि वो भी जब उसको ओल्ड एज हाउस भेजे तो इसी तरह उसको काम आएगा ये आधा हिस्सा। इन द सेम मैनर दिस प्रिक्स द कॉन्शियस ऑफ हिज फादर। इस तरह से उसके फादर का ज़मीर जो है वो जाग जाता है। ही स्टार्ट्स क्राइंग बिकॉज ऑफ गिल्ट एंड अमेंड्स हिमसेल्फ। इस तरह से वो रोता है एंड पे और उसे अपने एहसास जुर्म का एहसास होता है और वो अपनी इस्लाह कर लेता है। Question number 1 is how significant is the title The Blanket of the Story? Answer: the story is not only entitled as The Blanket, yani blanket plays a major role in developing the plot of the story. Developing the plot of the story means story को आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है. All the events revolve around the blanket. From the starts we come to know that grandfather is sent with the blanket. तो शुरू से ही हम देखते हैं कि blanket से start होती है story. All the people are worried और इसी से हमें पता चलता है कि granddad को जो है भेजा जा रहा है. At the end Peter also very sensibly conveys his message to his father through the blanket. आखिर में भी हम देखते हैं कि पीटर जो है वो ब्लैंकेट के थ्रू ही अपने फादर को समझा पाता है वो जो उसका मैसेज होता है. इन दिस मैनर द ब्लैंकेट इज़ द बिफिटिंग टाइटल फॉर द स्टोरी. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ब्लैंकेट जो है वो बहुत अच्छा टाइटल था. Question number 2 is that analyze the conflict in the story The Blanket. How is it resolved? तो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कि कौन सा जहनी तनाव होता है या कौन सी ऐसी फ्रस्ट्रेशन होती है जिसके मुतलिक स्टोरी द ब्लैंकेट जो है वो बता रही है. सो द मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी इज दैट पीटर डजंट वांट टू सेंड हिज ग्रैंडडैड टू अ नर्सिंग हाउस एट एनी कॉस्ट. वो किसी कीमत पर अपने दादा को भेजना नहीं चाहता ओल्ड एज हाउस. ही एट द सेम टाइम डजंट नो हाउ टू स्टॉप हिज फादर विदाउट बीइंग इंसोलेंट. इंसोलेंट मीन्स गुस्ताख होना. तो वो अपने फादर को भी डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहता और बड़े रिस्पेक्टफुली उसको समझाना चाहता है, लेकिन वो ये सब कैसे करे, यही कॉन्फ्लिक्ट है इस स्टोरी का. एट लास्ट ही रिजॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट वेरी सेंसिबली and logically by telling his father to cut the blanket into 2 because he will also send him to an old age house. His father's heart is moved. ठीक है, उसके फादर का जो दिल है वो पिघल जाता है and feels ashamed and the conflict is resolved. और वो शर्मिंदगी फील करता है और इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है. Analyze the tone of the story The Blanket. Is it joyous or sorrowful? Explain. So the tone of the story means the overall mood which pervades the story. जो स्टोरी पे छाया होता है pervades mean. So the tone of the story The Blanket from the very beginning is gloomy. बहुत sad है शुरू से ही. Peter is worried about his grandfather going to old age house as well as the marriage of his father to a senseless girl. ठीक है, एक बेहिस लड़की से उसके फादर शादी करने जा रहे हैं. Peter's grandfather is also sorrowful, unhappy on his son's behavior though he pretends a lot not to show it. ठीक है, उसके दादा ये शो करते हैं, बड़ा एक्ट करते हैं कि वो ना दिखाएं अपनी परेशानी और ख़ुद को खुश ही जाहिर करें. At last we see that happiness comes out of grief because Peter's father realizes his mistake. तो आखिर पे हम देखते हैं एंड पे कि बड़ा हैप्पी एंड हो जाता है क्योंकि उसके फादर रियलाइज करते हैं अपनी गलती को. तो सैड एंडिंग तब होती है अगर उसके ग्रैंड पा चले जाते और सारे जो हैं वो खफा होते, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि ठीक है, ग्लूमी है, थोड़ा सा सैड है, सारे रो रहे हैं, बट इट एंड्स हैप्पीली बिकॉज हिज ग्रैंडफादर वाज नॉट सेंट टू ओल्ड एज हाउस. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट एटीट्यूड डज पीटर शो अबाउट हिज डैड एंड ग्रैंडडैड. तो पीटर का बिहेवियर क्या होता है अपने डैड की तरफ और अपने दादा की तरफ. पीटर इज सो एंग्री विद हिज डैड बिकॉज ऑफ हिज डिसीजन टू मैरी अ सेंसलेस गर्ल दो एट द सेम टाइम ही इज क्वाइट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज फादर. इसलिए कि उसने अपने फादर से बदतमीजी ही नहीं की, उसने बदतमीजी से कहा ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं. तो हम देखते हैं कि वो अपने फादर से भी एक लव का रिश्ता है उसका और बड़ा रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स हिज फादर. इवन वो बड़ा गुस्से में है लेकिन वो अपना मैसेज उसे बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से कन्वे करता है. सो ही इज अपसेट मेजरली बिकॉज ऑफ हिज ग्रैंडफादर हु इज सेंट टू द ओल्ड एज हाउस. ज्यादा जो वो खफा है वो अपने दादा के जाने पे है. पीटर इज इग्नोर्ड बाय हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर इज द ओनली सोर्स ऑफ हिज हैप्पीनेस. तो वही खुशी का एक जरिया है उसके दादा और एक कंपनी है उसके साथ जिसके साथ वो खुश है. He loves his grandfather very much and wants to realize his father about the fault. Overall, his attitude is loving and
केयरिंग टुवर्ड्स हिज फैमिली। तो वो बड़ा लविंग और केयरिंग बच्चा है, तभी वो अपने फादर को बड़ा सेंसिबली और बड़ा लॉजिकली जवाब देता है, ताकि उसको बुरा भी ना लगे और उसका ज़मीर भी जो है वो जाग जाए, वो अपने मकसद में कामयाब भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ इज़ द थीम ऑफ द ब्लैंकेट द थीम ऑफ आवर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी एज वेल। तो हमारे सोसाइटी में जितना भी तोड़ फोड़ हो रहा है और जितना भी रिलेशंस जो हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, कैसे आप कह सकते हैं कि द ब्लैंकेट का जो मेन थीम है वो हमारी सोसाइटी पे ही बेस्ड करता है या उससे रिलेटेड है। सो द थीम ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी एप्टली मीन्स बड़े अच्छे तरीके से बिफिट्स ऑन प्रेजेंट डे डिसइंटीग्रेटेड सोसाइटी। आजकल का जो टूटा फूटा माशरा है, जो हमारी सोसाइटी बन चुकी है, उसके ऊपर बड़ा अच्छे से फिट होता है द ब्लैंकेट का मेन थीम। The author skillfully discusses that growing advancement, जो तरक्की है, has shattered the family bond, उसने तोड़ दिया है family bond को and relations. In the same manner, the social change enlarged the generation gap. Generation gap जो है वो enlarge हो गया है, बढ़ गया है, and the old people are considered outdated and burdened. बूढ़े लोगों को तो outdated यानी उनको दकियानूसी और उनको बोझ समझा जाता है। Because of materialistic approach, people spend more time in social media while ignoring the precious asset in कीमती असासा जो उनके पास है in their family in the form of old people. बूढ़े लोगों की सूरत में उनको वो इग्नोर कर रहे हैं। Question number 6 is describe your relationship with different family members who your relation is the most cordial with and who you stay aloof from and why. तो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, किसके साथ आप ज़्यादा अटैच हैं, कॉर्डियल हैं और क्यों, और किससे ज़्यादा अलग थलग रहते हैं और क्यों। आंसर है बीइंग अ मुस्लिम वी शुड हाईली वैल्यू फैमिली रिलेशनशिप एंड बॉन्ड। इस्लाम डजंट परमिट द वायलेशन ऑफ अदर्स राइट। इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि हम दूसरे के हकूक़ को पामाल करें। कीपिंग इन व्यू द अबव फैक्ट्स, आई हैव अ वेरी कॉर्डियल मीन प्लेजेंट रिलेशन विद ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, especially my mother who is very friendly to me. I sometimes remain aloof from my elder brother because of his strictness. थोड़ा सा उससे मैं अलग थलग रहती हूँ, but overall I love my family. लेकिन overall मेरा एटीट्यूड बड़ा अच्छा है। Question number 7 is if Peter had been exposed to the mass media, social media and internet, would he have developed the same intimacy with the grandfather as he did in the story? Elaborate. अगर पीटर सोशल मीडिया का बच्चा, वो मोबाइल यूज़ करता और इंटरनेट यूज़ करता, तो क्या वो इतना ही अटैच होता अपने दादा के साथ? इस बात को एक्सप्लेन करें। सो नाउअडेज यूथ आर टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय मास मीडिया। आजकल के जो नौजवान हैं वो मास मीडिया, इंटरनेट वगैरह से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। इट वीकन देयर रिलेशनशिप एंड फ्रेंडलीनेस टू ईच अदर। तो इस चीज़ ने इनके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया। दे हार्डली स्पेंड टाइम टुगेदर। तो वो चूँकि टाइम बहुत कम गुजारते हैं एक साथ। सो इन द सेम वे इफ़ पीटर हैड बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय मास मीडिया ही वुड हैव बीन नेवर डेवलप्ड द डीप इंटीमेसी विद हिज ग्रैंडफादर। इसी तरह पीटर भी अगर मास मीडिया का बच्चा होता तो वो अपने दादा के कभी इतने करीब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाई डज पीटर्स डैड गेट एंग्री विद द गर्ल ही इज़ गोइंग टू मैरी। तो जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उससे क्यों खफा हो जाते हैं? पीटर्स डैड इज़ नॉट कम्प्लीटली अ बैड मैन। ही वॉज ऑलरेडी रिलक्टेंट टू सेंड हिज फादर टू ओल्ड एज हाउस। वो ऑलरेडी उनका दिल नहीं होता, चूँकि उस लड़की ने उनको मजबूर किया होता है। तो बेसिकली वो अच्छे आदमी होते हैं। एंड कम्पनसेट हिज गिल्ट बाय गिविंग हिज फादर फाइन ब्लैंकेट। तभी वो सिर्फ एक अच्छा सा ब्लैंकेट लेकर उनको देना चाहते हैं ताकि किसी तरीके से अपने गिल्ट को रिमूव कर सकें। द गर्ल इवन कैन नॉट बेयर दिस गोइंग अवे गिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट्स रिपीटेडली। वो गर्ल जो है वो इस एक ब्लैंकेट को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और मुसलसल उस पर ऑब्जेक्शन करती रहती है। पीटर्स फादर दैट इज़ वाई गेट्स एंग्री ऑन गर्ल्स बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट डज आवर religion teach us about old parents? So Islam teaches us great respect for parents, especially when they get old. जब बूढ़े हो जाते हैं तब तो बहुत ज़्यादा एहतराम का कहा गया है। Allah commands in Quran that we should be kind to our parents and not to say a word of disrespect to them and act humbly to them. Parents disobedience is considered as a major sin in Islam. एक गुनाह कबीरा शुमार किया जाता है। And those who do not honor elders are considered expelled from the circle of Islam और इन्हें दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया जाता है। तो ये एक हदीस का मफहूम है। होप स्टूडेंट्स यू एंजॉय दिस स्टोरी और आपको क्वेश्चन आंसर सारे आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।